Hello students, welcome you all to the Radhika Classes Foundation Zone. In this session, we are going to discuss about the class 10th chapter of biology that is life processes. इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्ट 1 दैट इज न्यूट्रिशन. तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट डज द लाइफ प्रोसेसेस मीन्स? The various chemical activities that are occurring inside the human body are referred as life processes. The processes, the chemical reactions, chemical processes को मैं यहाँ डिफाइन करूंगी. chemical reactions, ह्यूमन बॉडी में जब भी बच्चे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मेटाबॉलिज्म. What is metabolism? The various chemical reactions or the processes that are occurring inside the human body are referred as metabolism. And those metabolic activities which are required necessary for the survival of living organism are referred as life processes. वो metabolic activities जो human body के लिए necessary है for survival, they are referred as life processes. उसमें आते हैं हमारी 4 activities, 4 processes. First is nutrition, second is respiration, and then third is transportation. And the fourth one, the last one is excretion. So, आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में बात. Once the nutrition is complete, in second class we will do respiration, in third class transportation, and fourth class excretion. With this we complete our complete chapter in 4 classes only. So this is the class with the topic nutrition. Nutrition से start करते हैं बच्चे. What does the nutrition means? To intake, either to synthesize or to intake, either to synthesize or intake nutrients. हम nutrients ले रहे हैं to survive, to get energy. Energy किस लिए चाहिए? Energy किस लिए चाहिए? For growth, development and metabolism. बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी हैं जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में. सो फॉर दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी नीड एनर्जी. एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा हमारा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स. एंड जब हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो दैट इज रेफर्ड एज बैलेंस डाइट. सभी न्यूट्रिएंट्स को इक्वल अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है उसी अमाउंट में ले रहे हैं तो दैट इज रेफर्ड एज बैलेंस डाइट. सो बच्चे अब मैं यहाँ न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ. सी द फ्लो चार्ट हियर. न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड इनटू 2. One is autotrophic, autotrophs. Those who can prepare their own food are known as autotrophs, and the nutrition is autotrophic nutrition. And another is heterotrophs. Heterotrophs means those who cannot prepare their own food, but they depend on autotrophs for their food. They are dependent on autotrophs for their food. Autotrophs can synthesize their own food, while heterotrophs cannot synthesize their own food. तो food कैसे ले रहे हैं? By depending on autotrophs. Now autotrophs, those who can prepare their own food, उसमें क्या आएगा? Either they can prepare their food through photosynthesis. By the process of plants prepare their own food by the help of photosynthesis. ठीक है? Plants and some certain bacteria, cyanobacteria can prepare their own food. Then chemosynthesis. What is chemosynthesis? Certain bacteria that can prepare their food by utilizing inorganic materials. For example, nitrate, nitrogen from the atmosphere, या सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया सल्फर से को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड ले रहा है, मींस इंडस्ट्रियल वेस्ट पे ग्रो करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, तो दैट इज कीमोसिंथेसिस. नाउ हेटेरोट्रॉप्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. हेटेरोट्रॉप्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज होलोजोइक. होलोजोइक, we human beings are holozoic in nature. Holozoic means we can engulf the whole food and then digest it. Saprophytes that survive on dead decaying organic matter. For example, fungus, vultures that survive on dead. They obtain their food from dead decaying organic matter. And the last one is parasitic. Parasitic means that cause to their harm.
हार्म टू देयर होस्ट, जिस होस्ट से वो फूड ले रहे हैं उसी को हार्म कर रहे हैं। इसमें हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, वन इज एक्टोपैरासाइट, जो होस्ट की बॉडी पे जिससे फूड ले रहे हैं हम उसे होस्ट कह रहे हैं, बॉडी पे रह के बाहर रह के उसको हार्म कर रहे हैं, और एंडो बॉडी के अंदर जाके। एक्टोपैरासाइट का बच्चे मैं आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। एक्टोपैरासाइट का अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एक्टोपैरासाइट में आते हैं लाइसिस इन अ हेयर, हेयर्स में लाइसिस है दैट सक्स ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन एंड कॉजेज हार्म ऑब्वियसली तो पैरासाइट एक्टो बॉडी के बाहर रह के। ऐसे ही एंडो पैरासाइट का बच्चे मैं आपको एग्जांपल दूंगी मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट दैट सर्वाइव्स इन ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करता है इन अ लीवर सेल्स एंड द आरबीसी एंड कॉजेज हार्म, तो बॉडी के अंदर रह के होस्ट को हार्म कर रहा है, एंडो पैरासाइट। सो बच्चे न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप्स में फोटोसिंथेसिस पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अब, एंड देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे डिटेल में। होलोजोइक मोड में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन, मल्टी सेलुलर दैट इज ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम बात करने वाले फोटोसिंथेसिस की। Now what is photosynthesis? The process by which plant prepare their own food is known as photosynthesis. Plant जिस प्रोसेस से अपना खाना बना रहे हैं उसे photosynthesis कह रहे हैं। What are the basic requirements? Plants take carbon dioxide, water, in the presence of sunlight. Plants mainly क्या चाहिए photosynthesis के लिए? Sunlight and chlorophyll. अब बच्चे आप मुझसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या सिर्फ सनलाइट, जो हमारी ट्यूबलाइट आर्टिफिशियल लाइट होती है, यस उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यस बच्चे दोज प्लांट दैट रिक्वायर वेरी लेस लाइट, तो वो आर्टिफिशियल लाइट फ्लोरोसेंस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड दे प्रिपेयर फूड, प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। कैसा फूड? ग्लूकोज, फॉर्मूला C6O6H12 एंड रिलीजेस वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 glucose molecule means for the formation of 1 glucose molecule how many carbon dioxide molecules are required? 6. Overall amount of water utilized 12 molecule use किए, 6 release हो गए, तो overall utilization of water कितना हुआ? 6 water molecules and oxygen is released, oxygen gas is released। इसीलिए कह रहे हैं कि photosynthesis जो है वो necessary है to clean the environment। photosynthesis also prepares food as well as clean the environment। कैसे? एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस हुई ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, एंड देन क्या बना? ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके सफोकेटिंग गैस को हमारी ब्रीथेबल गैस में कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट इज इट क्लीन्स द एनवायरमेंट एंड रिड्यूसेस, ग्रीन प्लांट रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिड्यूस हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इट इज अ reduction in global warming because of photosynthesis। रॉ मटेरियल्स क्या हुए फोटोसिंथेसिस के? क्या क्या रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड? अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करती हूँ बच्चे, रॉ मटेरियल्स की, और रॉ मटेरियल्स में सबसे पहला क्या यूज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब यूटिलाइज हुई तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ली? तो प्लांट जो गैस क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं बच्चे। Plant shows gaseous exchange through stomata. What are stomata? Stomata are the tiny pores present on the lower surface of, generally on the lower surface of the leaf, that helps in gaseous exchange as well as transpiration. Stomata का function, stomata की definition देंगे तो क्या है? Tiny pores present on a leaf. Okay? And अगर मैं इसके function की बात करती हूँ, stomata के function की बात करती हूँ बच्चे, तो इसका function first is gaseous exchange, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन रिलीज करना। ठीक है, एंड द अनदर फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज ट्रांसपीरेशन। अनदर फंक्शन ऑफ अ स्टोमेटा इज ट्रांसपीरेशन। नेम द सेल्स दैट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो बच्चे guard cells helps in opening and closing of stomata. See, these are the kidney shaped guard cells in a dicot. In dicot, these are kidney shaped guard cells that helps in opening and closing of stomata. This pore here, the pore creates is a stomatal pore guarded by the guard cells. When guard cell swells, what they swells because of endosmosis, इनमें पानी भर जाएगा, swell, they stomata open, pore open हो गया। Once they shrink, water loss होगा, shrink होंगे due to exosmosis, water loss होगा, then stomata close, open and close. This is the opening and closing of stomata with the help of
मैं नेम द सेल्स दैट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट आर गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स इन अ स्टोमेटा. स्टोमेटा इज अ पोर गार्डेड बाय, उसके चारों तरफ कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स दैट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब गार्ड सेल्स की शेप की बात कर लेते हैं बच्चे, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इन डाइकोट्स इट इज किडनी बीन शेप. It is kidney bean shape. While in monocots, they are dumbbell shape. Dumbbell shape. So cells that helps in opening and closing of stomata is guard cells. And now, what is the function of stomata? These are the tiny pores present on a leaf, helps in gaseous exchange and transpiration. Second requirement of the photosynthesis is water. Water कहाँ से मिलेगा? हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो रूट से एब्जॉर्ब होके लीव्स तक कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? थ्रू जाइलम टिश्यू. इट रीचेज द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू. थर्ड रिक्वायरमेंट सनलाइट, नेचुरली अवेलेबल, प्लांट को लाइट में रखोगे आप. फोर्थ रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट के लीव्स में होती है. फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियसली लीव्स, बिकॉज लीव्स आर ग्रीन इन कलर. फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? क्लोरोफिल का जहां प्रेजेंट होगी. क्लोरोफिल इज अ मेन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. मींस द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी तक मैं क्या कह रही हूँ? लीफ. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स. तो अब लीव्स का टीएस बना के डायग्राम देख लेते हैं. तो बच्चे अगर मैं टीएस ऑफ लीव बनाती हूँ, टीएस ऑफ लीव मींस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव बनाते हैं. लीव को हम कट कर रहे हैं ट्रांसवर्सली, तो क्या दिखेगा? अपर लेयर ऑफ अ सेल, दिस इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस. इन मोनोकोट, डाइकोट, एक स्पेसिफिक डाइकोट प्लांट की बात करती हूँ बच्चे. तो डाइकोट प्लांट में लोअर सरफेस पे पोर्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. एंड ऑन अपर सरफेस देयर इज अ वैक्सी कोटिंग, रेफर्ड एज क्यूटिकल. और अंदर जो सेल्स हैं, ये देखो इस तरह से अपर साइड पे जो सेल्स हैं वो पैलिसेड शेप सेल्स हैं, कॉलमनर शेप सेल्स हैं. लोअर साइड पे जो सेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस है, एयर कैविटीज है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पॉन्जी मेसोफिल. दिस इज पैलिसेड मेसोफिल. पैलिसेड इज अ शेप एंड these are spongy because of air cavity space की वजह से. स्पॉन्जी मेसोफिल. एंड लिसन वन थिंग हियर, जो बच्चे क्लोरोफिल है, आई विल चेंज कलर एंड शो यू. जो क्लोरोफिल है बच्चे, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट हियर. क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोफिल होंगे. ग्रीन कलर सिर्फ यहाँ होगा. एपिडर्मिस नेवर हैव ग्रीन कलर. क्लोरोफिल एपिडर्मिस में कभी नहीं होगी. इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेसोफिल सेल. आप कभी लीफ की अपर मोस्ट कवरिंग को रिमूव करके देखना, दैट इज ऑलवेज व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर, because this epidermis never have epidermis, this upper epidermis or a lower epidermis never have green color pigment, have chlorophyll. और the chlorophyll कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में. मींस अब हमें लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. हमें क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है. सो इट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली present, double membrane bound cell organelle present in a plant cell only, helps in photosynthesis. ये देखो बच्चे एक stacks हैं, these stacks are called thylakoids. इन stacks को हम क्या कह रहे हैं? thylakoids. इस thylakoid के ग्रुप को क्या कह रहे हैं? This total group is called granum, and this is another granum present. Group of thylakoids, granum is present. It is joined together by a stalk called stroma lamellae. It is stroma lamellae, and the rest is matrix. This is stroma matrix. Clear? This is structure of the chloroplast, where here in the thylakoids chlorophyll is present. Here in the thylakoid chlorophyll is present. And what is the function of chlorophyll? Chlorophyll का function क्या है? Chlorophyll क्या करता है? Chlorophyll जो plants में है, इसका function क्या है? Absorption of light energy. Absorption of light energy. सनलाइट को एब्जॉर्ब करना ही क्लोरोफिल का काम है. प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होती है. सो बच्चे अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब का हमारा टॉपिक हो गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. ध्यान से सुनोगे इसको तभी क्लियर होगा. एंड ये स्टेप क्लियर हो गया तो यू आर क्लियर विद द होल steps of
फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किससे, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। प्लांट्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ऑब्वियसली बच्चे लाइट प्रोड्यूसेस हीट ऑल्सो, लाइट क्या हीटिंग इफेक्ट दे रहा है जिसकी वजह से केमिकल इफेक्ट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लीफ में एब्जॉर्ब हुए हैं, डिफ्यूज हुए हैं रूट से एंड देन जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंचे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो मैं उसको कह सकती हूँ इट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ एक बात आपको बच्चे ध्यान रखनी है, सी दिस वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हियर स्प्लिट्स अप इनटू H+ एंड हाफ O2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, आपने अभी रिएक्शन लिखा था, मैं इसको अभी लिखूंगी दोबारा, जितने वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किए उसके हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए एंड द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हियर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड द थर्ड स्टेप हियर इज रिडक्शन ऑफ, अब H+ बना है तो H+ से क्या होगा, रिडक्शन, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। मैंने रिएक्शन लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, chlorophyll, it produces food in the form of glucose plus water plus oxygen। बैलेंस किया था हमने इक्वेशन को, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर हेयर एंड 6 सी। सबसे पहला क्या काम हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने। क्लोरोफिल ने जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया द वाटर गेट स्प्लिट अप इनटू H+ एंड हाफ O2। सी हाफ ही तो है ना, अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो H1 H+ एंड हाफ O2। 12 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होंगे तो क्या बनेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल। सो बच्चे बताओ मुझे मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा यार, ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर। वाटर बाय प्रोडक्ट नहीं हो सकता बच्चे, वाई, बिकॉज वाटर हम यूज भी कर रहे हैं और फिर रिलीज हो रहा है तो उसको हम बाय प्रोडक्ट, हम यहाँ वाटर को बाय प्रोडक्ट किसको कहेंगे, ऑक्सीजन को। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वाटर में भी है, तो कौन सी ऑक्सीजन आई है, ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। ये आपका एमसीक्यू होने वाला है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हियर इज वाटर। नाउ दिस हाइड्रोजन get towards the carbon dioxide, addition of hydrogen in a carbon dioxide is called reduction, reduction of carbon dioxide to produce glucose, reduction। ये वाला जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आया वो कहां से आया, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन आया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई, क्या बना, ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को अगर ट्रांसपोर्ट करना है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन इट इज सुक्रोज। 2 molecules of glucose combine and form sucrose and 2 molecules of glucose combine and form sucrose, और sucrose is transported to various parts, क्योंकि लीव्स में तो यूटिलाइज नहीं होना ना, फूड जो बना वो तो कहीं भी यूटिलाइज हो सकता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द स्टेम आल्सो, रूट्स आल्सो, फ्लावर बर्ड्स आल्सो। सो सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। एंड अगर प्लांट्स को फूड स्टोर करना है तो बहुत सारे सुक्रोज अगेन कंबाइन होके बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देंगे स्टार्च, एंड प्लांट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स ऑलवेज स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब बच्चे जो इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस थे, जो मेरे सेल फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स थे, मैं इसको 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर रही हूं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। नाउ व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो पहला जो 2 स्टेप हुए थे मैकेनिज्म में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे आर लाइट डिपेंडेंट, तो दैट इज लाइट रिएक्शन एंड दैट अकर इन थाइलाकोइड of chloroplast। While the third step जो हमने अभी मैकेनिज्म में पढ़ा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए व्हाट वी नीड, हाइड्रोजन आयन। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करानी है फूड बनाने के लिए, वो हाइड्रोजन कहीं से भी आए, आइदर बाय सनलाइट से स्प्लिट कर रहे हैं या किसी और सोर्स से स्प्लिट हो रहा है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन का मतलब है
कि ये लाइट नहीं चाहिए, इसको लाइट तो चाहिए लेकिन डायरेक्ट लाइट की लाइट डाई लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। इसको क्या चाहिए, लाइट दिन में हो सकता है, ये स्टेप दिन में ही होगा, यानी कि ये दिन में होगा और ये रात में होगा। लाइट इंडिपेंडेंट मींस इसको लाइट नहीं, इसको हाइड्रोजन आयन से मतलब है, बट इनडायरेक्टली ये लाइट पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कब होंगे, व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, उसके लिए लाइट चाहिए। सो दिस एंड दिस अकर इन स्ट्रोमा लैमेले। आप जाके पीछे देख सकते हो, मैंने स्ट्रोमा लैमेले ड्रॉ किया था, वहां पे स्ट्रोमा लैमेले में डार्क रिएक्शन होगी और थाइलाकॉइड में जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे लाइट रिएक्शन होगी फॉर photosynthesis. So this is all about the photosynthesis that occur in plants and it is a type of autotrophic nutrition. अब हम पहुंचते हैं हेटेरोट्रॉप्स पे। हेटेरोट्रॉप्स में अगर बच्चे बात करते हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स में हमने बात की थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, देन सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल क्या होगा, फंगस इज अ सैप्रोफिटिक इन नेचर दैट सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज वल्चर्स आल्सो। एंड देन पैरासाइट्स की बात की तो कस्कुटा, अमरबेल इज अ प्लांट दैट इज पैरासिटिक प्लांट। आपको याद रखना है बच्चे, इसमें होलोजोइक हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सैप्रोफाइट्स हमने बता दिया दैट सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फंगस इसका एग्जांपल है आपके पास, वल्चर्स इसका एग्जांपल है दैट ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देन पैरासिटिक की बच्चे बात करती हूँ तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू 1 मार्क में, पैरासिटिक का एग्जांपल बताओ। लाइसिस इन अ हेयर, एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर रह रहे हैं। टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स, अगेन एक्टोपैरासाइट। कस्कुटा, कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट जिसे आप अमरबेल के नाम से जानते हो, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट है, जिस भी प्लांट पे रहता है उस प्लांट को वो पूरा सुखा देता है, उस प्लांट को पूरा ड्राई कर देता है, ठीक है, और खुद से क्या हो जाता है, फ्रेश ग्रीन रहता है, तो दैट इज कस्कुटा अमरबेल, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट, एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है, बॉडी के अंदर जाके होस्ट को हार्म करता है। नाउ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बच्चे बात करते हैं तो क्या मतलब है, एनगल्फ फूड पार्टिकल, फूड को एनगल्फ कर लेता है एंड देन डाइजेस्ट, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो, एग्जांपल अमीबा, and multicellular organism also, example human beings. So अब हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba and nutrition in human beings. So let's start nutrition in amoeba. First of all, अगर मैं nutrition in amoeba की बच्चे बात कर रही हूँ, nutrition in amoeba, amoeba follows, first step आपका रहेगा amoeba follows holozoic mode of nutrition, and in holozoic mode of nutrition there are 5 different steps. First is ingestion, then digestion, then absorption. Any organism, either human being, animal, unicellular, multicellular, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, होलोजोइक होगा तो ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा, एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ingestion. Amoeba intakes the food. This is amoeba with a irregular shaped body with nucleus. It intakes the food by forming टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरह से ये फूड को अप्रोच करने के लिए टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। यू कैन सी माय फिंगर आल्सो, टेम्परेरी फिंगर, ये अमीबा टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड एनगल्फ्स द फूड, इनटेक्स द फूड। और ये जो बच्चे टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीडो इन बायोलॉजी मींस फॉल्स, पोडिया मींस फीट, सीडोपोडिया मींस फॉल्स फीट बनाएगा एंड थ्रू फॉल्स फीट इट इनटेक्स द फूड एनकैप्चर्ड, और वो फूड को एनकैप्चर करने के बाद कहाँ लेगा, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फूड वैक्यूल जिसमें फूड आ जाएगा। फिर इन फूड वैक्यूल कहाँ पे, फूड वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। जो भी फूड पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, उनको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपल वन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड देन that digested food get absorbed into the cytoplasm. क्यों, साइटोप्लाज्म से ही तो वो एसिमिलेटरी साइट पे जाएगा, फूड की एसिमिलेशन। फूड किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं हम, फूड इनटेक क्यों कर रहा है ये अमीबा, फॉर गेटिंग एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ मिलती है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म से ही तो वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज हियर। तो फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होने के बाद इसको यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने के लिए क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन इन अ
diffusion in a cytoplasm, that is called absorption. Then utilization of food to get energy in the form of ATP is done by mitochondria. And then फूड वैक्यूल में ही जो फूड ना ही बचे डाइजेस्ट, हेयर फूड वैक्यूल में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जंक था एंड ना ही एब्जॉर्ब हुआ, तो अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, जो फूड ना ही डाइजेस्ट हुआ ना ही या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, रिलीज्ड आउट, it is released out through the body known as egestion. Released out through the body known as the removal of, the thrown out of undigested and unabsorbed food through the body of amoeba is known as egestion. Egestion means removal of food. So these are the 4 steps. आपको यहाँ याद रखना है pseudopodia, then food vacuole, and undigested food is released, unabsorbed food is released out. Now nutrition in humans. Heterotrophic human beings follow holozoic mode of nutrition. They are multicellular organism that follows holozoic mode of nutrition, means intakes the food and then digest it. So first of all ingestion होगा. Ingestion means intake of food. As human beings are very complex organism, intake the food through mouth very appropriately, and then digestion occur. डाइजेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, उसी कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स is known as digestion. Now बच्चे enzymes क्या है, तो enzymes are biocatalyst. What is catalyst? Catalyst is any substance that increases the rate of reaction. किसी भी biological reaction, या catalyst की अगर मैं सिंपल बात करती हूँ बच्चे, catalyst किसी भी chemical reaction की speed को increase कर रहा है, rate को increase कर रहा है. And enzymes are biocatalyst, मतलब metabolic reactions, biological reaction में catalyst का काम कर रहा है, increases the rate of reaction, speed of a reaction without going any change in itself. After reaction, after digestion, what we get? Enzyme as such, क्योंकि उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वो एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है. अच्छा बच्चे बात आई कॉम्प्लेक्स फूड का. कॉम्प्लेक्स फूड क्या बच्चे, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड, बैलेंस डाइट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं, इफ वी आर वेजिटेरियन तो हम कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज प्लांट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वेजिटेरियन है तो स्टार्च लेंगे, नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लेंगे. इनमें भी एनी कार्बोहाइड्रेट हम ले सकते हैं वैसे. देन प्रोटीन्स लेंगे, फैट्स लेंगे. इनको डाइजेस्ट होने की जरूरत है. विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑलरेडी इन सिंपल फॉर्म, तो उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे बिकॉज वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है. जो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन होकर सिंपल फॉर्म बनेगी तो क्या बनेगी, याद रखोगे, ग्लूकोज. प्रोटीन्स की सिंपल फॉर्म क्या बनेगी, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी एंड देयर मोनोमेरिक यूनिट, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. फैट्स की फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. याद रखेंगे, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज. सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड. फैट्स की सिंपल फॉर्म, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. सो अब बच्चे डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं. डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हमारा. इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल and associated glands. Alimentary canal is a pathway from where the actual food passes, and glands gives an enzymes for the digestion of food. Glands provide enzymes for the digestion of food. तो food कहाँ से पास होता है बच्चे, बक्कल कैविटी से. बक्कल कैविटी से it goes to esophagus, that is food pipe. Esophagus is food pipe. Then it goes to stomach. From stomach it goes to small intestine to large intestine, and large intestine to through anal opening it is released out. ठीक है. बक्कल कैविटी में हमारा क्या होता है, बक्कल कैविटी इज गार्डेड बाय लिप्स से, माउथ से हमने फूड इनटेक किया, इट एंटर्स द बक्कल कैविटी. वहां है टीथ, टंग and 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands are present in buccal cavity.
Then esophagus, that is food pipe. Food pipe shows peristaltic movement so that food immediately enters the stomach. स्टमक के बच्चे हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें होते हैं 4 पार्ट्स, फंडस, पाइलोरिक एंड कार्डियक. फंडस, पाइलोरिक एंड कार्डियक. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट की बात कर लेते हैं, तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, this duodenum, jejunum. I am writing the small intestine 3 parts here. It is duodenum, jejunum, ileum. And large intestine के जो 3 parts हैं, it is further as 3 parts. Cecum, colon, rectum. Undigested and unabsorbed food is stored temporarily in a rectum and then released out through anal opening. अब बात करते हैं glands की. The glands associated with the digestive system are, the glands associated with digestive system की बात करते हैं, तो first gland is pair of salivary gland. 3 pairs of salivary glands present in a buccal cavity. Then liver, the largest gland, and the pancreas. पेनक्रियाज के लिए बच्चे आप एक बात याद रखोगे, पेनक्रियाज आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स. हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स का क्या मतलब है? दे रिलीज एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन. पेनक्रियाज इज द ओनली ग्लैंड इन आवर बॉडी दैट रिलीज एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड. एंड द लीवर के लिए एक बात याद रखनी है, क्या? लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड. सो स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से. व्हेन वी इनटेक फूड, द फूड एंटर्स द बक्कल कैविटी एंड देन डाइजेशन स्टार्ट्स. सो बक्कल कैविटी में क्या होता है बच्चे? बक्कल कैविटी में क्या होगा? Buccal cavity has teeth, tongue, salivary glands. 3 pairs of salivary glands are there. Teeth. Teeth कैसे हैं हमारे? We have 2 sets of teeth. पहले एक न्यूबॉर्न चाइल्ड में, बर्थ के बाद, न्यूबॉर्न चाइल्ड never have अब during birth no teeth are there. After birth, after 5 to 6 months teeth appear and that teeth are called temporary teeth. Temporary teeth, and these are 20 in number, or also known as milk teeth. Then permanent teeth appear, and permanent teeth are 32 in number. We have heterodont arrangement. Heterodont arrangement of teeth. Heterodont means there are more than one type of teeth. We have 4 types of teeth. First is incisors, then canine, premolars, and molars. These are the different types of teeth. Incisors का function क्या है? Cutting. Incisors help in cutting. Canine, tearing. They are almost non-functional those who are vegetarian because there is no food other than sugarcane, I think, जिसको हम tear करते हैं. तो premolar and molars mostly use होते हैं, that is chewing. Cutting, tearing, chewing. ठीक है? अगर मैं ये आपका jaw बनाते हैं हम, तो बच्चे एक साइड के टीथ को इस तरह से, first 2 are incisors, then canine, then premolar and the molar. This last molar tooth is called wisdom tooth. इस last molar को क्या कहेंगे? Wisdom tooth. Last molar is called wisdom tooth that appears late in life. उसका कोई scientific logic नहीं है. ठीक है? Illogical, social logics लगा सकते हैं, but no scientific logic. That appears late in life. क्यों? क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अभी तक इसका मेन फंक्शन है, बिकॉज च्यूइंग तो मोलर से, बाकी के मोलर से भी कंप्लीट हो जाती है. सो डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, then 3 molars, and last molar, third molar is called wisdom tooth. On the left side of a jaw, lower left side, lower up side, and multiply by 2 on the same side of right side. तो ये बन गया हमारा 32. अगर मैं ऐसे ही टेम्परेरी मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला लिखूंगी तो इट इज 2102 अपॉन 2102. इंसीजर कैनाइन, नो प्रीमोलर एंड 2 molars only, multiply by 2. 2 plus 1 3 and 5 and 5 10 into 2 20 milk teeth are present. Now tongue का काम क्या है? Mastication, mixing of food with saliva. Mastication, mixing of food with saliva. Now salivary glands, 3 pairs of salivary glands releases saliva. Saliva contains enzymes, mucus. Saliva contains enzyme, mucus, and certain ions for maintaining the pH also. So what is the function of mucus here? Makes the food soft and slippery. Mucus का काम क्या है? To make the food soft and slippery. And enzymes, कौन कौन से enzymes है?
फर्स्ट इज लाइसोजाइम दैट हेल्प्स टू किल द जर्म्स, फूड में अगर कोई जर्म्स है तो उनको किल करने की कोशिश करेगा। एंड द सेकेंड एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, हमारे फूड में जो भी स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आई एम राइटिंग अगेन द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। Salivary glands, which is 3 pairs of salivary glands, are present in a buccal cavity. And name बता रही हूँ मैं आपको, it is not a part of your CBSE syllabus, but for your knowledge I am just telling you. Submandible, present in a cheeks. It is also known as submaxillae. Submandible or submaxillae. Next one is sublingual. All are present in pair. And another version is parotid gland. These are the 3 glands present in pair in a buccal cavity and releases saliva, and saliva contains majorly the mucus and enzymes and certain ions for pH balance. And enzymes में अगर मैं बच्चे बात करती हूँ, the main enzyme here is salivary amylase. Salivary amylase works and digest the starch. फूड में जितना भी स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। जब आप बच्चे चपाती या कोई भी ब्रेड दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, उसको च्यू करोगे अच्छे से सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, तो इट फील्स स्वीट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। एंड इट आल्सो कंटेन लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हेल्प्स टू किल द जर्म्स, हेल्प्स टू किल द जर्म्स। फिर तो हमें बीमार नहीं होना चाहिए, सारे जर्म्स फूड में जो जंक हम खा रहे हैं खत्म नहीं। लाइसोजाइम ट्राइज टू किल, बट ये सभी जर्म्स को किल नहीं कर पाता बिकॉज इट इज वेरी लेस अमाउंट हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे। एंड म्यूकस मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी सो दैट इट इज इजी टू एनगल्फ द फूड। इनटेक, अनगल्फिंग ऑफ फूड क्या हो जाए, इजी हो जाए, हम फूड को इजीली एनगल्फ कर सकें। सो दिस इज अ बक्कल कैविटी। नाउ बक्कल कैविटी से फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ पाइप, फूड पाइप। फूड जब यहाँ जाएगा, इससे हमने उसको सॉफ्ट स्लिपरी बनाया है, मेस्टिकेट किया, मिक्स किया पूरा सलाइवा से, एंड टीथ ने उसको ग्राइंड किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, च्यूइंग। देन इट व्हेन इट एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप हेयर, सो ये यहाँ पे बीच में ना रह जाए, बीच में नहीं अटक जाए, इसके लिए द esophagus, the food pipe shows rhythmic movement. Esophagus shows the rhythmic movement, the zigzag rhythmic movement known as peristalsis. Peristalsis or known as peristaltic movement, so that food can immediately enter the stomach. Food pipe connects the buccal cavity to the stomach so that through peristaltic movement, the rhythmic movement of the esophagus, जो यहाँ पे muscles हैं वो rhythmic movement करेंगी, so that food will immediately enter the stomach. Now the food will enter stomach. Food remains in stomach for maximum 4 to 5 hours. इसलिए खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे हमें भूख नहीं लग रही है, because it remains in stomach for 4 to 5 hours and get digest. Stomach, the wall of stomach has gastric gland. Gastric gland. The wall of stomach has gastric gland. It is a shape of a stomach. अगर हम बात करें तो it is J-shape organ. आप डायग्राम देखते हो तो it is J-shape organ, and here the wall of stomach here as the gland known as gastric gland. Gastric gland releases, gastric gland है तो हम उसको क्या कहेंगे, it contains several enzymes, so it was known as gastric juice. Juice means बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या क्या चीजें हैं, तो first is HCl, second is mucus, थर्ड इज देन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन जो बच्चे ये इनएक्टिव फॉर्म में है। व्हाई इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, वरना तो ये स्टमक की मसल्स भी प्रोटीन की बनी है, ये प्रोटीन को स्टमक की वॉल मसल्स को डाइजेस्ट कर देगा। दैट्स व्हाई दे आर इनएक्टिव फॉर्म। जब इनकी फूड डाइजेशन में रिक्वायरमेंट होगी तभी एक्टिव होंगे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ऑब्वियसली एसिड है तो एसिडिक मीडियम देगा, एंड एसिडिक मीडियम होगा तो किल चेक्स एंड किल जर्म्स। अगर कोई फूड में जर्म्स होंगे तो उनको भी किल करने की इसके पास कैपेबिलिटी है। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एज वेल एज हेल्प्स टू किल्स द जर्म। नाउ म्यूकस, द प्रोटेक्ट, इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर a wall of stomach. Protect the wall of stomach. It protect the wall of stomach from effect of HCl. किस लिए प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज HCl is very acid, corrosive in nature,
इसीलिए उसको वॉल को, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना है. दैट प्रोटेक्शन इज डन बाय म्यूकस. नाउ पेप्सिनोजन, एज वी नो पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम. ये एक्टिव कब होगा? एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? HCl. So whenever the food enters the stomach, gastric gland releases pepsinogen, and in the presence of HCl in a stomach, cause of acidic medium, it converts to pepsin. Now what the pepsin do? Pepsin is an enzyme. तो उस फूड में जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेगा. नॉट कंप्लीटली, प्रोटीन्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. हियर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर एंड प्रोटीन्स वर कन्वर्टेड इनटू आइदर प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स. अब ये सारी चीजें बनाएगा. सो बच्चे दैट डिपेंड्स हमने कैसा प्रोटीन लिया है. सम प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड इनटू प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोटीन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? फंक्शन ऑफ स्टमक बेसिकली फूड डाइजेशन में क्या है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. और पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पेप्सिन. पेप्सिन कैन एक्टिवेटेड इन विच मीडियम? HCl. What is the function of HCl? Provide acidic medium, kills germs and activates also the inactive enzyme pepsinogen to pepsin. Clear? Now what is acidity? यहाँ बात कर लेते हैं acidity क्या है. अगर HCl important है तो फिर acidity क्यों होती है? So बच्चे HCl का एक अमाउंट, appropriate अमाउंट है जो हमारे स्टमक में चाहिए for the digestion of food. But अगर वो अपने appropriate अमाउंट से, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट अमाउंट है, उससे ज्यादा इंक्रीज इन HCl कंटेंट इन अ स्टमक leads to acidity. It leads to acidity and sometimes it also leads to peptidic ulcers in a stomach. Acidity leads to peptidic ulcers. And if you are good in chemistry, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बच्चे एसिड बेस चैप्टर में कि अगर हमें एसिडिटी हुई है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेस. और यहाँ पे हम कौन सा बेस यूज करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जो आपके एंटासिड टैबलेट्स होते हैं बच्चे, दैट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी. सो आफ्टर स्टमक digestion of protein, partial protein occur, digestion of partially the protein digestion occur in a stomach. Now the food enters the small intestine. It enters the small intestine. After digestion, partial digestion of proteins in a stomach, the food enters the small intestine. फूड कहाँ एंटर कर रहा है बच्चे? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन. नाम तो कह रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, बोल रही हूँ लॉन्गेस्ट. एंड अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग, और 6 एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इट इज 6.8 मीटर लॉन्ग. तो कैसे बच्चे? सो इट इज अ वेरी थिन पाइप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, इसीलिए पतला है, इसलिए स्मॉल. लेकिन इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन. इतना लंबा, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं है फिर. ठीक है ना, पूरे हाइट में कैसे, कितनी बॉडी में कैसे आएगा? तो बच्चे इट इज इन द कॉइल्ड फॉर्म. इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंड द लॉन्गेस्ट ऑर्गन. मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखोगे मैक्सिमम डाइजेशन, सारी डाइजेशन कहाँ होती है? कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ हो रही है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मींस डिफ्यूजन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड इन अ ब्लड is absorption. Diffusion of digested food, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो ब्लड में जाएगा, डिफ्यूज करेगा, वो होता है एब्जॉर्प्शन. और वो एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे व्हेन फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो ये एक ट्यूबुलर पतला सा ट्यूब है जो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में इस तरह से. बट जैसे ही स्टमक से यहाँ पे फूड आता है, साथ में यहाँ पे ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फूड small intestine is duodenum. Whenever the food enters the duodenum, साथ साथ वहां पे क्या आता है? लीवर से bile juice. Liver releases bile juice in a small intestine, and pancreas and heterocrine gland releases pancreatic juice. Pancreas releases pancreatic juice. Whenever food enters, food कैसा है? Partially digested food. क्योंकि उस फूड में स्टार्च भी कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट हो चुका है और प्रोटीन्स भी पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं. तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हेयर इज कॉल्ड काइम. इसको हम क्या कहेंगे? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा है वो काइम है. क्यों? क्योंकि वो स्टमक से आ रहा है और वो एसिडिक फूड है. एसिडिक फूड इन अ स्टमक is called chyme, and when it enters, the chyme enters the stomach, small intestine, and the same time the liver releases the bile juice. Liver releases the bile juice that enters the duodenum, small intestine, and pancreas releases pancreatic juice that also enter here. अब यहाँ क्या होगा? First of all, role of bile juice की हम बात करते हैं. Whenever food enters,
द ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस साथ आ रहा है, तो बाइल जूस क्या करेगा, प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम। बाइल जूस कंटेन्स कार्बोनेट आयंस, जो कि एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। मतलब जो फूड एसिडिक फूड काई में आया था यहाँ पे, स्टमक से एसिडिक था, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, काइल में, ताकि वो भी यहाँ पे एल्कलाइन हो जाए और पीएच रिड्यूस उसका क्या हो जाए, पीएच को बढ़ा दिया, क्योंकि एसिडिक से बेसिक कर रहा है, एल्कलाइन कर रहा है, तो पीएच को इंक्रीज कर दिया, so that now the pancreatic juice enzyme will work. Second important function of an enzyme is bile juice is emulsification of fats. एमल्सिफिकेशन, और फूड में जो फैट्स हैं उनकी एमल्सिफिकेशन करेगा। फैट्स देखो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए थे, ठीक है। द थ्री मेन बायोमोलिक्यूल्स दैट नीड्स टू बी डाइजेस्ट इन अ बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया कि आर ऑलरेडी इन अ सिंपल फॉर्म, दे डायरेक्टली गेट एब्सॉर्ब इन अ ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और द वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दे नेवर गेट डाइजेस्टेड। अब बचा क्या था फिर, जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च की डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है, कहाँ पे, सलाइवा में, सलाइवरी एंजाइम से बकल कैविटी में, और पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हुई है स्टमक में। यहाँ क्या बचा, फैट्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मीन बिग फैट ग्लोब्यूल्स को किसमें तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देना, फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। डज बाइल जूस कंटेन एंजाइम? नो, bile juice does not contain any enzyme but play a very important role in digestion. How? Because it provides alkaline medium. क्योंकि जब तक alkaline medium नहीं मिलेगा, काइल नहीं होगा, तब तक पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। प्लस फैट्स के जो ग्लोब्यूल्स हैं, फैट का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, उस पर एंजाइम डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फैट ग्लोब्यूल्स बनाना, ये भी काम किसका है, सो दैट फैट्स डाइजेशन अकर प्रॉपर्ली, बाइल जूस का। नाउ बाइल जूस का काम खत्म हो गया, नाउ द वर्क इज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका काम होगा, पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेन्स एन एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, इट वर्क्स, याद रखोगे, इट वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या फर्क है, पेप्सिन इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, trypsin is also a protein digesting enzyme, but pepsin in stomach works in acidic medium, get activated in acidic medium, and trypsin is again activated in alkaline medium. It is present in small intestine and get activated in alkaline medium. तो वो जो partially digested proteins है, partial digested proteins, maybe it in the form of proteases, peptones और peptides, जो वो प्रोटीन्स थे उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड, बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन। देन हियर अगेन अनदर एंजाइम इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियास से रिलीज होने वाला अमाइलेज एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नाउ व्हाट दिस पैनक्रियाटिक अमाइलेज डू, हमने जो खाना खाया था वो स्टार्च हो सकता है, क्योंकि बक्कल कैविटी में फूड बहुत कम टाइम के दे रहा था, तो हो सकता है स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर डाइजेस्ट हो गया होगा तो क्या बना होगा, माल्टोस। तो आइदर द स्टार्च और द माल्टोस, एंड इफ वी आर नॉन वेजिटेरियन, हमने ऐसा ग्लाइकोजन फूड स्टोर मटेरियल खाया है, तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में, उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज, द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड देन अमल्सिफाइड फैट्स को कौन कन्वर्ट करेगा, लाइपेज वर्क्स ऑन अमल्सिफाइड फैट्स। जो फैट्स बाइल जूस ने जिन फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदला है, एमल्सिफाइड बनाया है, ब्रेक डाउन किया है, उसको लाइपेज किस में कन्वर्ट करेगा, fatty acid and glycerol, and these all get absorbed in blood from directly, जैसे ही फॉर्म होंगे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, they get absorbed in a blood only in a small intestine. So digestion completes in small intestine. start कहाँ हुई थी, डाइजेशन स्टार्ट हुई थी बक्कल कैविटी में, खत्म कहाँ हो रही है, लार्ज इंटेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ द फूड, the undigested and unabsorbed food enters large intestine. large intestine में क्या होगा बच्चे, तो in large intestine जो क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फूड में जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। और जो अनडाइजेस्टेड, अभी भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है, वाटर की एब्जॉर्प्शन के बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब वाटर है, स्टोर्ड इन रेक्टम। कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम में स्टोर होगा। और रेक्टम में स्टोर होने का इसका पर्पस क्या है, टू गेट रिलीज्ड आउट, एंड देन egestion occur, release of undigested and unabsorbed food through anal opening
anal opening is known as egestion. This undigested and unabsorbed food is released once stored in rectum. Once the rectum gets completely filled, it is egested, released out from the body. That is known as defecation. Term क्या use करेंगे? Defecation, removal of undigested and unabsorbed food from the body through anal opening. Now एक बात रहेगी यहाँ बच्चे हमारे पास विल्लई. व्हाट आर विल्लई? सो बच्चे हमने बताया था कि ये चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इस तरह से. अब यहाँ से जब फूड पास होगा तो इट कैन इजीली पास आउट, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अगर मैं ये लार्ज इंटेस्टाइन भी बना रही हूँ यहाँ पे, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनल ओपनिंग, दिस इज एनल ओपनिंग एंड दिस इज रेक्टम एंड ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक, तो यहाँ पे सारा बच्चे क्या है? विल्लई, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. These are called villi, either in small intestine or in large intestine. What is the function of villi? Increases surface area. Absorption कहाँ होनी है? Absorption of water occur in large intestine as well as the maximum absorption occur in small intestine. तो जहां भी absorption होती है वहां क्या मिलेंगे? Villi. Increases the surface area for absorption of food. क्योंकि जब फूड को एब्जॉर्ब होना है तो उसको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए. और लार्ज सरफेस एरिया कैसे प्रोवाइड किया गया? बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर. देखो एक मैं सिंपल बनाती हूँ. ये एक ट्यूब था, कोई भी चीज यहाँ से इजीली पास आउट हो जाएगी, बट अब इसी ट्यूब में ये मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से विल्लई बना दिए. अब फूड को इस तरह से घूम के जाना पड़ेगा. सरफेस एरिया इंक्रीज, कंज्यूम्स टाइम, उस टाइम में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो जाएगी. तो विल्लई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन both small intestine as well as large intestine that increases the surface area for absorption of food. In the large intestine बच्चे ये एक मैंने ऑर्गन बनाया है. इस ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. नाउ व्हाट इज अपेंडिक्स? तो आपने सुना होगा अपेंडिक्स में पेन होता है और ऑपरेट करके निकालना पड़ता है. सो बच्चे दिस इज कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. वेस्टिजियल मतलब हमारे फोरफादर्स एंड सिस्टर में इसका कुछ फंक्शन होगा, वी डोंट नो, बट नाउ इट इज नॉन फंक्शनल. अभी होता क्या है कि यहाँ पे जब हम फूड को जैसे ही वो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है तो सम टाइम ड्यू टू आवर एक्टिविटीज वो फूड खड़े होके खाना खा रहे हैं जो कि एक इरेगुलर ईटिंग हैबिट है. फूड में एंटर्स दिस ब्लाइंड सैक, यहाँ से बंद है, यहाँ ब्लाइंड सैक में एंटर कर सकता है और वंस इट गेट कंप्लीटली फिल्ड तो इट गेट स्वेल अप. ये स्वेल अप हो जाएगा एंड इट कॉजेस पेन, और उस पेन में हमें इसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है ड्यूरिंग पेन. एंड ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो है बच्चे, लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ इम्यूनिटी, इम्यूनोपोटेंट सेल्स, इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे सेल्स मिलते हैं. मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इम्यूनिटी. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. सो इट इज वेस्टिजियल कंसीडर होता है लेकिन उसमें इम्यूनोपोटेंट सेल्स हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. So this is all about today's class, that is nutrition topic. In tomorrow's or the next class we will do respiration. Second part of life process is respiration in next class. Thanks a lot for the today. Thank you.